Good evening, everyone. Audible to all of you. Okay, chalo then. In today's session, first we'll talk about Afghanistan issue, and then we have news in short. Now, Afghanistan issue is in news mainly because of recent clashes or recent issues that are happening in Afghanistan. And again, there is increase in power by Taliban trying to control majority of the region of Afghanistan. That's why it came in news. So we'll talk about the history of Afghanistan, why it is so much prone to this kind of issues, and why it is important to study the issue of Afghanistan. And then secondly, we'll talk about news in short. Good evening everyone, good evening. And in today's session, mainly we'll talk about what are the reasons, what are the historical events in this issue, and how this issue of Afghanistan, or you can say Taliban, increased in Afghanistan. ठीक है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे पहले. So let's start with this article. The surge, or you can say the increase in control of the area by Taliban is happening, and because of which it is in news. And this is coming in news mainly because recently there is surge in power by Taliban at the time when when Afghanistan, USA and Taliban, they have decided that USA will withdraw from this region and they will have one negotiation or one arrangement. ठीक है, एक arrangement हो जाएगा इनका, so that there will be democracy or a good system will be there in Afghanistan. So when USA decided to withdraw, USA ने जब withdraw करने का decide किया, USA ने कहा कि ठीक है अभी system ठीक करते हैं, इन तीनों का मिला के एक agreement कर लेते हैं. After that Taliban started increasing the control. Afghanistan में Taliban started increasing the control, which is now creating a problem कि क्या यूएस को अभी विड्रॉ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तालिबान क्या करना चाह रहा है. दीज इश्यूज आर कमिंग अप. ओके, सो बहुत बच्चों की इच्छा पूरी कर दी. ओके, थैंक यू करा है ना. हाउ कम सुपर पावर नॉट एबल टू अपरूट द तालिबान. पता चलेगा ना बेस्ट लर्नर, इतने जल्दी कैसे पता चलेगा. ठीक है, पता चलेगा, सब पता चलेगा क्या प्रॉब्लम है, क्या होता है, क्या नहीं है. ओके, सो अफगानिस्तान, द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स एंड अफ्रीकाज लॉस्ट वॉर, ऐसा कहा जाता है इसको. इट इज कॉल्ड एज द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स बिकॉज बड़े बड़े एम्पायर आके यहाँ पे खत्म हो जाते हैं. इफ यू सी द हिस्ट्री ऑफ अफगानिस्तान, नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इनका फिजियोग्राफी क्या है, इनका हिस्ट्री क्या है. सो इफ यू सी द हिस्ट्री ऑफ अफगानिस्तान, Afghanistan is located in such area that if you are having control over Afghanistan, you can control both Asia as well as few part of, you can say, Middle East, because Iran इसको लगा हुआ है, ईरान जो है उसको लगा हुआ है. So you can control Middle East as well as you can control India. तो इसके बीच में अफगानिस्तान लोकेटेड है. So the location is very strategic. It does not have as such कोई landlocked country है, it does not have access to water, but it is having a very big resource that is called as opium, है ना. यहाँ पे मिलता है हीरोइन, गांजा जिससे बनता है ना, हीरोइन बनता है, that is there, opium. And because of this land is having opium, ये भी one of the reasons है कि यहाँ पे war होती रहती है. ठीक है. Now it is graveyard of empire. Why it is called as graveyard of empire? Because big empires. You can see historically यहाँ पे बड़े empire रहे हैं. फिर अब अपन देखते हैं कि this Russian USSR entered. USSR enter किया था in Afghanistan somewhere in 1978-79, and by the year 1992 इनको खुद को disintegrate करना पड़ा. After that 14 साल, 14 years USA was there, and still USA is not successful, and it is also called as the America's lost war, जो अमेरिका हार चुकी है इस kind of. इससे पहले भी there were big empires, like you must have heard about third battle of पानीपत. वहाँ पे इंडिया में आए थे अहमद शाह अब्दाली from दुर्रानी empire of अफगानिस्तान. उससे पहले भी इंडिया पे अटैक करने वाला गजनी वाज देयर फ्रॉम अफगानिस्तान. ठीक है. सो अफगानिस्तान में मेजरली रूलर रहे हैं. ओके, सर की वीडियो अच्छा, ओके चलो कोई नहीं, बाद में करो, ठीक है ना. तो
चीजों पे ध्यान दिया करो, ठीक है। चैट सेक्शन खुला रहता है, बातें करनी नहीं थी ज्यादा उसमें। चलो, सो व्हाई अफगानिस्तान, क्यों होता है ये अफगानिस्तान में, व्हाई इट हैपेंस इन अफगानिस्तान? बिकॉज अफगानिस्तान इज हिस्टोरिकल, यू कैन से, अगर इसकी फिजियोग्राफी आप देखो अफगानिस्तान की, तो इट इज लोकेटेड इन सच एरिया जहां पे ज्यादातर लैंड इज नॉट फर्टाइल। वहां पे एक ही चीज उगती है, वो आपको पता चल गया, बट रेस्ट ऑफ द लैंड इज नॉट फर्टाइल लैंड। वहां का लैंड जो है वो फर्टाइल लैंड नहीं है, एंड दैट्स व्हाई यहाँ के लैंड पे जो दिस लैंड इज नॉट फर्टाइल, एंड मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ दिस एरिया इज लोकेटेड इन रूरल एरियाज। इसका जो कंट्री साइड या फिर रूरल एरिया है, दैट इज हैविंग मेजर पॉपुलेशन, एंड दे आर वेरी ट्रेडिशनल इन देयर वे ऑफ लाइफ। दे फॉलो दिस शरिया, और यू कैन से इस्लाम जो उनका है, ट्रेडिशनल इस्लाम को फॉलो करते हैं। लिटरेसी रेट इज ऑल्सो वेरी लो, लिटरेसी रेट भी काफी कम है इनका, लिटरेसी रेट भी काफी कम है, स्पेशली वुमेन लिटरेसी तो और भी कम है इन दिस एरियाज। नाउ दिस हैपेंड बिकॉज ऑफ देयर एरिया, और इवन यू कैन सी, जब आपने मूवीज वूवीज कुछ भी देखा रहेगा तो यू सी अफगानिस्तान में दे ऑलवेज शो अंडुलेटिंग टेरेन, पहाड़ होते हैं, ऊपर नीचे का एरिया होता है, एंड देन यू सी ज्यादातर एसयूवी यूज होती है ना, इस टाइप की गाड़ियां, है ना, इस टाइप की एसयूवी वाली कार यूज होती है। सो दिस टाइप ऑफ कार्स आर यूज बिकॉज द रोड्स आर नॉट गुड, रोड्स अच्छे नहीं है, पहाड़ है, नदी नाले बहुत सारे हैं, तो बिकॉज ऑफ दिस इश्यूज एंड लैंड इज ऑल्सो नॉट फर्टाइल, बिकॉज ऑफ दिस इश्यूज दीज पीपल वेर नॉट एबल टू सर्वाइव ऑन देमसेल्फ। तो ये लोग क्या है, खुद से सर्वाइव नहीं कर सकते, दे डू नॉट हैव फर्टाइल लैंड। नाउ इंडिया, अब आप ये सोचो कि इंडिया सच अ बिग एम्पायर, सोने की चिड़िया वन टाइम, एंड इट वाज अटैक्ड बाय डिफरेंट यू कैन से डिक्टेट रूलर्स ऑफ अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के रूलर आके इंडिया को हरा के इंडिया को लूट के जाते थे 7 टाइम्स, है ना, सूरत को 7 टाइम गजनी लूट के लेके गया था, ऐसा बोलते हैं। तो दिस हैपेंड मल्टीपल टाइम्स दे इन्वेडेड इंडिया। हाउ दिस इज पॉसिबल फॉर देम, ये उनके लिए पॉसिबल कैसे था? बिकॉज फॉर देम इट इज फॉर देयर सर्वाइवल, ये उनके सर्वाइवल के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, बिकॉज दे वेर नॉट हैविंग फर्टाइल लैंड, that means they do not have food to eat. So if they don't have food to eat, they have to go and invade someone. इंडिया को कहीं जाके इन्वेजन की जरूरत नहीं थी, इंडिया वॉज नॉट इन नीड ऑफ इन्वेडिंग समवन, बिकॉज वी आर हैविंग लॉट ऑफ वेल्थ। अपने यहाँ पे कॉटन भी था, खाना भी था, सब कुछ था, एवरीथिंग वॉज देयर, वाटर वॉज ऑल्सो देयर। तो अपना अपना ही चारा चलता था, इंडिया किसी के ऊपर जाके अटैक करने की कोशिश नहीं करता था, बिकॉज वी आर सेल्फ सफिशियंट, एंड पीपल वेयर यूज टू कम टू इंडिया एंड ट्रेड विद इंडिया। और तभी वो अपन को सोना देते थे और अपने से सामान लेके जाते थे, स्पाइसेस मेजरली लेके जाते थे, एंड बिकॉज ऑफ विच स्पाइसेस, कॉटन एंड दिस आइवरी, ज्वेलरी के आइटम, आज भी हमारे यहाँ पे ज्वेलरी अच्छी खासी बनती है और बिकती है ना, तो ज्वेलरी के आइटम, मेकअप के आइटम्स, ये सारे इंडिया से एक्सपोर्ट होते थे, एंड इन रिटर्न इंडिया वाज गेटिंग गोल्ड। इन रिटर्न इंडिया को क्या मिलता था? गोल्ड मिलता था। दैट्स व्हाई इंडिया वाज सोने की चिड़िया। नाउ बिकॉज ऑफ दिस ट्रेड इतना ज्यादा होता है, एंड वेन एवर सिंपल लॉजिक इज देयर, whenever there is economy, it will become an empire. E is equal to E होता है, इकोनॉमी इज एम्पायर होता है, एंड whenever there is violence, वायलेंस जहां भी होगा वहां पे बिजनेस नहीं हो पाएगा। वायलेंस डज नॉट सपोर्ट्स इकोनॉमी, बिकॉज यू कैन सी इन सीरिया या इराक या ईरान, या देख सकते हो जहां पे भी वायलेंस काफी ज्यादा होता है, येमेन, दे आर नॉट गुड इकोनॉमी, वहां पे बिजनेस अच्छे से नहीं हो पाता। पाकिस्तान है ना, फॉर एग्जाम्पल, हमारे पड़ोसी, हमारे प्यारे दोस्त, तो पाकिस्तान, दे आर हैविंग वायलेंस, सो इट डज नॉट सपोर्ट द इकोनॉमी। नाउ बिकॉज ऑफ दिस इंडिया वॉज नॉट इन्वॉल्व इन वॉर, एंड इंडिया का इतना ज्यादा ध्यान नहीं होता था सिक्योरिटी के ऊपर, सो इंडिया वाज इन्वेडेड, एंड दीज पीपल, अफगानिस्तानी पीपल, मेनली द पश्तून पीपल ऑफ अफगानिस्तान, पश्तून, और जिसको आप पख्तून भी कहते हैं, और यू कैन से पठान, पठान्स ऑफ अफगानिस्तान, जो पश्तून होते थे, दिस पठान्स ऑफ अफगानिस्तान, देख सकते हो आप, इनका फिजिक भी काफी बड़ा होता है ना, फिजिक भी काफी बड़ा होता है, एंड दे आर वेरी मच इन्वॉल्व इन वॉरफेयर, मेनली गोरिल्ला वॉरफेयर, और यू कैन से नॉर्मल वॉरफेयर में भी दे आर एक्सपर्ट, बिकॉज देयर डे टू डे सर्वाइवल इज डिपेंडेंट ऑन ऑल दीज थिंग्स। इनका डे टू डे सर्वाइवल जो होता है वो इन सब चीजों की वजह से ऊपर होता था, हंटिंग वगैरह के ऊपर होता था। दैट्स व्हाई दे वर एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ वॉरफेयर, एंड दे डिसाइडेड टू कम टू इंडिया। इंडिया को इन्वेट करने का सोचा। हमारे लोग सोचते थे भाई झगड़ा वगड़ा करने की जरूरत नहीं, थोड़ा बहुत लेना लेके चले जाओ, ठीक है। सो दिस काइंड ऑफ सिचुएशन वाज देयर। सो द पीपल ऑफ अफगानिस्तान, मेनली द पश्तून और पठान पॉपुलेशन, दे आर वेरी मच
इन्वॉल्व इन दिस काइंड ऑफ वॉरफेयर, एंड उनका फिजिक भी उस टाइम पे काफी ज्यादा है ना सपोर्ट करता था। अब तो देर आर एडवांस टेक्नोलॉजीज, मिसाइल्स आ गई, बंदूकें आ गई, तो इसकी वजह से इतना फर्क नहीं पड़ता, बट एट दैट टाइम दे वर वेरी पावरफुल फोर्स एंड दे वर यूज्ड टू इन्वेड। Now because of this and their way of fight, because they were living in rural areas, very harsh terrain, बहुत ज्यादा undulating terrain है, ऊपर नीचे वाला एरिया है, रूरल एरिया है, अनएजुकेटेड पीपल है, तो उनका वे ऑफ स्ट्रगल भी और वे ऑफ फाइटिंग भी काफी डिफरेंट है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, काइंड ऑफ गोरिल्ला वॉरफेयर। गोरिल्ला वॉरफेयर मीन्स, कल बताया सबने आपको, गोरिल्ला वॉरफेयर मीन्स अटैक एंड हाइड, अटैक करके हाइड छुप जाते हैं, अटैक करके छुप जाते हैं, अटैक करके छुप जाते हैं, एंड दैट्स व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड देम, इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड देम। एंड वहां के जो रूरल पॉपुलेशन है, दे आल्सो सपोर्ट दिस, बिकॉज व्हाट हैपेंस देयर दैट कि दे Taliban, or you can say these people, are majorly supporter of their religion and their traditional practices. Outsider या फिर कोई आता है जो उनके ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट बात करता है, then they have a problem. उनका जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है, शरिया लॉ है, उसके अगेंस्ट अगर कोई जाता है, then they have a problem. So and the reason is this is rural population, uneducated population, and staying in rural areas, or you can say very backward kind of population है, तो उसकी वजह से they do not know what exactly is liberty, है ना, क्या होता है, उनको पता नहीं है freedom of speech and expression. So that's why they are unaware of all these things, and that's why whenever this attackers come, जब भी ये तालिबान कुछ अटैक करता है, and after that Taliban try to go in the rural area, लोगों के सिविलियंस के बीच में जाके रहने लगते हैं। अब चाहे यूएस आ जाए या कोई भी फोर्स आ जाए दुनिया की, दे कैन नॉट अटैक ऑन सिविलियंस ना। अब हर कोई तालिबान नहीं होता ना, हर कोई तालिबान या फिर बुरा तालिबान नहीं होता, तो देखेंगे हम तालिबान भी अच्छा बुरा क्या होता है, तो हर कोई तालिबान नहीं होता, एंड दैट्स व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल टू अटैक ऑन देम। सिविलियन एरिया में जाके छुप जाए तो पॉसिबल नहीं है, एंड देयर वे ऑफ स्ट्रगल इज गोरिल्ला वॉरफेयर, जब मिलेंगे तब मारेंगे और छुप के चले जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज काइंड ऑफ थिंग, दिस इज काइंड ऑफ सिचुएशन। एंड दूसरा ये है कि तालिबान इटसेल्फ वाज ट्रेन्ड बाय यूएस सोल्जर्स, तो उनको भी पता है कि यूएस में कैसी ट्रेनिंग होती है, वही ट्रेनिंग इनको मिली है, कैसे मिली है, क्या मिली है, वो बताऊंगा मैं आपको। सो बिकॉज ऑफ दीज इश्यूज इट इज नॉट पॉसिबल कि इनको हटाया जाए, एंड दिस इज द रीजन, एंड बिकॉज ऑफ द स्ट्रेटेजिक लोकेशन एंड काइंड ऑफ ओपीएम दैट दे ग्रो, या फिर जो चीजें इनके यहाँ ग्रो होती है, दैट्स व्हाई मेजर एम्पायर्स ऑफ द वर्ल्ड ट्राई टू कंट्रोल देम, और मेजर सुपर पावर्स ऑफ द वर्ल्ड ट्राई टू कंट्रोल देम, लाइक यूएसएसआर, और यू कैन से रशिया और यूएसए, और फ्यूचर में कह सकते हो चाइना, दे विल ट्राई टू control this region because they want to control this entire area, and that's why Afghanistan becomes a area, सबको लगता है कि हमको इसको जीतना है, लेकिन अंपायर वहां पे क्या हो जाते हैं, खुद का ग्रेवयार्ड बना देते हैं, खत्म हो जाते हैं। When USA is withdrawing, USA is lost war कहा जा रहा है इस चीज को, that means USA का सुपर पावर एक तरीके से खत्म हो रहा है, this ऐसा कहा जाता है। So this is overall broad story, ठीक है, ये एक ब्रॉड ओवरव्यू है कि ये क्या क्या है क्या नहीं है। नाउ विल स्टडी अबाउट तालिबान, ये कैसे बना था, क्या हुआ था, इससे पहले कौन से एम्पायर थे, कैसे कैसे क्या क्या हुआ, वो हम देखेंगे। पश्तून इज द लोग, श्रेया पश्तून लोग है, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं आप लोग क्या कह रहे हो। यस, वियतनाम, धीरेन, करेक्ट, वियतनाम भी इनका लॉस्ट वॉर है, ठीक है, वियतनाम भी है। ओके, देन लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट इस्लामिक ट्राइबल कंट्री, यस, लाइक हमर हाँ, ठीक है, करेक्ट करेक्ट धीरेन। ओके, चलो, कुछ काम का खास कमेंट दिख नहीं रहा है ना तो सर चाइना को खत्म करना है, लेट देम एंटर अफगानिस्तान, ओके ओके, ठीक है। हाँ सर, वाई सो मेनी पीपीटीज, क्योंकि वो पुरानी पीपीटी जो रह गई थी, ठीक है। चलो अब आगे बैठते हैं, देखते हैं क्या है सिचुएशन इनकी।
बस यहाँ पे एक फोटो में याद रखना कुछ चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये मिसाइल याद रखो, दिस इज कॉल्ड एज स्टिंगर मिसाइल। ठीक है, इसको कहते हैं स्टिंगर मिसाइल, STINGR। और इनको ज्वेलरी देखो इनकी कितनी बढ़िया है ना। ओके, सो दिस इज अफगानिस्तान, ये कह सकते हो आप, दिस इज अफगानिस्तान एंड दिस इज रशियन एम्पायर। ये अफगानिस्तान का लोकेशन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज हियर इज ईरान, हियर इज पाकिस्तान, और यू कैन से पूरा इंडिया यहाँ से कंट्रोल हो सकता है। ईरान, इराक, दिस एरिया कैन बी कंट्रोल्ड। रशिया को भी बाहर निकलने का रास्ता ज्यादातर यहाँ से मिलता है। सो दैट्स व्हाई दिस इज स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऑफ अफगानिस्तान। एंड देयर आर 2 एरियाज अराउंड इंडिया। इंडिया में भी यू कैन सी मेजरली देर इज प्रॉब्लम, मेजरली आप देख सकते हो in India also there is major problem of drugs or opium in the area of Punjab and in the area of northeast, because पंजाब के पास लगा हुआ है एक एरिया कॉल्ड गोल्डन क्रिसेंट, है ना, गोल्डन क्रिसेंट। टेल मी द नेम ऑफ दीज 3 कंट्रीज। एंड नॉर्थ ईस्ट के पास है गोल्डन ट्रायंगल, और यहाँ आप कह सकते हो इसको गोल्डन क्वाड्रिलैटरल भी बन चुका है। 4 कंट्रीज है यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के पास विच आर मेजरली इन्वॉल्व इन द ट्रेड ऑफ ओपीएम। ठीक है, तो गोल्डन क्रिसेंट में कौन है, गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्वाड्रिलैटरली पकड़ो आप कौन कौन है, वो मुझे बताना है आपको। नाउ लेट्स कम टू द बैकग्राउंड। So the political history of Afghanistan can be dated to the Hutak dynasty. Hutak dynasty of Mirawais was started in 1709. Just remember the name, Hutak dynasty is of Afghanistan. Then Ahmad Shah Durrani came in power in 1747, जिन्होंने Durrani empire बनाया with head office or you can say capital in Kandahar. Later Durrani empire shifted the capital to Kabul, and this Durrani empire was lost to Sikh in 1823. Now this is one of the region. Now again see, always geography have some, or the area ki history have something which is related to the you can say current situation of the area. तो पंजाब have always suffered because of attacks, because पंजाब हमारे उस एरिया पे है जहां पे किसी को भी इंडिया में एंटर करना है द वे इज वाया पंजाब। चलो पानी से ब्रिटिशर्स आए ट्रेड करने के लिए आए, दैट वाज वेरी डिफरेंट थिंग, बट बाकी सारे एरिया में हिमालयाज है। द ओनली ओपन एरिया हिंदू कुश माउंटेन से जहां पे आप थोड़ा सा एंटर कर सकते हो इंडिया में, दैट इज वाया पंजाब। और इसलिए पंजाब ने हमेशा वॉर और स्ट्रगल्स है, एंड दैट्स व्हाई वी हैव मेनी यू कैन से पीपल हु आर इन्वॉल्व इन आवर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, और यू कैन से मेजरली जो हमारे लोग रहे हैं विच आर आज भी आर्मी में ज्यादा देखते हो, दे आर फ्रॉम द एरिया ऑफ पंजाब, दे आर वॉरियर्स बाय यू कैन सी हिस्टोरिकल जो उनका बैकग्राउंड रहा उसकी वजह से दे आर वॉरियर्स। ठीक है, दे आर ऑफ दिस बैकग्राउंड ओनली। सो दिस इज अफगानिस्तान। नाउ इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जगह याद रखो, दिस इज काबुल, दिस इज जलालाबाद, दिस इज कांदाहार। कांदाहार आपको पता रहेगा इंडिया से रिलेटेड भी है कांदाहार का कनेक्शन। देन देयर इज मजार शरीफ, दिस इज इंपॉर्टेंट। हेरात, Zaranj, this is also important from the Indian perspective, Zaranj Dilaram रोड के लिए। दिस इज हिंदू कुश माउंटेन जिसके थ्रू आप इंडिया में एंटर कर सकते हो। ठीक है, जिसके पास पासेस है, पासेस, विच पास इज देयर जहां से आप इंडिया में एंटर कर सकते हो, बता सकता है मुझे तो बताओ। सो दीज आर फ्यू इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ अफगानिस्तान दैट यू शुड रिमेंबर। नाउ आफ्टर दिस इफ यू कनेक्ट दिस अफगानिस्तान विथ इंडिया, इंडिया के साथ अगर इनका कनेक्ट करे तो अहमद शाह अब्दाली थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के अलावा दे हैड वॉर विथ ब्रिटिशर्स एज वेल, एंड Britishers were not able to capture, eventually they were not able to capture Afghanistan, and that's why they decided to capture the region of Punjab. ठीक है, इसलिए इन्होंने सोचा कि पंजाब को कैप्चर किया जाए। So first Anglo-Afghan war between East India Company briefly seized the control of Afghanistan, so they were in the winning side. Following the second and then third of Anglo-Afghan war in 1919, तो final war between Afghanistan and Britishers was ये war of 1919 in which the country was able to became independent। तो अफगानिस्तान इसके बाद इंडिपेंडेंट हो गया with a monarchy under अमानुल्लाह खान। इनके अंदर यहाँ पे मोनार्की आ गई until almost next 50 years when जहीर शाह overthrow to make this area as republic। तो 1919 से लेके अराउंड 50 साल तक they were under monarchy only, after that जहीर शाह है और वहां पे रिपब्लिक बनाया गया। so this was second Anglo Afghan war of 1880 के आसपास हुआ था। now in first Anglo Afghan war, in first Anglo, just a minute,
So इन द सेकेंड फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर में क्या हुआ था? इन फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर ब्रिटिशर्स वेयर एबल टू विन एंड ब्रिटिशर्स कंट्रोल किए. देन सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर में नोबडी वाज ऑन द विनिंग साइड, बट स्टिल अफगानिस्तान के जो एक्सटर्नल अफेयर्स है दे वेर मैनेज्ड बाय ब्रिटिशर्स. बट इन एंड दिस ट्रीटी, नाउ दिस ट्रीटी इज इंपॉर्टेंट, जिसके वजह से अफगानिस्तान के एक्सटर्नल अफेयर्स और दिस फॉरेन रिलेशंस वेर मैनेज्ड बाय ब्रिटिशर्स कॉल्ड ट्रीटी ऑफ Gandhumak. Treaty of Gandhumak was there, okay, by which it accepted that the external matters of Afghanistan were to be handled by Britishers and British India mainly. उस टाइम पे British India था तो British India handle करेगा. And in third Anglo-Afghan war, but this Afghani were on the winning side and Britishers वहां से बाहर हो गए. And third Anglo-Afghan war, after this there was Treaty of Rawalpindi, जिसके बाद अमानुल्लाह खान declared as the king. And इनके बाद आगे थे, ये 50 साल तक रूल किए थे. एंड आफ्टर दैट देयर वाज कमिंग अप ऑफ जहीर शाह. बट ड्यूरिंग दिस ट्रीटी, ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ अमानुल्लाह खान के टाइम पे ही इंप्रूव्ड द रिलेशनशिप विथ सोवियत यूनियन एंड इवन विथ जर्मनी, because earlier they were not able to, they were not allowed to have a relationship with the Soviet Union or with Germany. Now they were allowed, so they increased their relationship. Following this 1927-28 में he had a tour of Europe and Turkey, and in which he decided to modernize the nation. Elementary education was made compulsory and slavery was removed in the year 1923. तो इन्होंने काफी कुछ अच्छा करने की कोशिश की. But as I said, in Afghanistan, if you try to improve anything, there is a problem because majority population is rural areas, uneducated, and power, you can say poverty is also very high. That's why आप उसमें ज्यादा चेंज ना करो तो बेहतर होता है. Then Prince Muhammad Nadir Shah, Amanullah's cousin, he was ruling for a few time. After that, in Muhammad Zahir Shah, Nadir Shah's 19-year-old son, succeeded the throne and reigned from 1933 to 73. ठीक है. And after this, King Zahir Shah, like his father Nadir Shah, had a policy of national independence while pursuing the gradual modernization, creating nationalist feeling and improving the relationship with United Kingdom. तो इन्होंने भी थोड़ा modernize करने की कोशिश की. However, Afghanistan remained neutral during the Second World War. And in 1973 there was Daud Khan. ये आ गए थे दाऊद खान. आई थिंक बाय मिस्टेक आई सेड जहीर शाह ने वहां पे डेमोक्रेसी लाई थी. इट वाज नॉट जहीर शाह, इट वाज दाऊद खान. जहीर शाह तो उनके बेटे थे, अमानुल्लाह खान के कजिन बेटे, है ना, कजिन थे कोई, जिनकी वजह से वहां पे कंटिन्यूड पावर ऑफ Khan dynasty was there, you can say Amanullah Khan ki. But Daud Khan, who came in 1973, launched a bloodless coup. Bloodless coup means, coup का मतलब तो everyone know, I guess आपको पता है, coup means overthrow कर देना गवर्नमेंट को. Bloodless coup was there, that means this Zahir Shah left the पावर, है ना, इन्होंने मार खाए बिना, मरे बिना पावर छोड़ दी अपनी, एंड बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट. सो दाऊद खान बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान, एबॉलिशिंग द monarchy in Afghanistan. After that, in April 1978, communist, remember this, they are communist. Now this is the situation. 1973 के आसपास की situation है. Okay, 1973. Now during 1973, world was divided in USA and USSR, right? So this region of Afghanistan was majorly under the influence of USSR. ठीक है, इनका influence था. And because of the influence only, there was coming up of PDPA, because as I said, everyone have craving of having Afghanistan, है ना, तो सबको craving है. वैसे USSR was having this, and USSR decided to have a communist party there. So they established People's Democratic Party of Afghanistan, and this was a communist kind of party who seized the power in a bloody coup against the then president Mohammad Daud Khan. तो इनको मार दिया गया. And this revolution, when the power, because this 1973 में Daud Khan who came in power, Daud Khan decided again to have few changes in the system of Afghanistan, and that created a problem. And जिसकी वजह से this PDPA का rise happened. PDPA with the support of Soviet Union, Soviet के support के साथ this rise of PDPA happened, and they removed this Mohammad Daud Khan in a revolution which is called as SAR revolution. इसको कहते हैं SAR revolution, SAUR, SAR revolution. ठीक है, this SAR revolution happened. But this within this PDPA there were new, you can say different wing. एक को कहा जाता था खल्क, and second was called as परचम.
एक को कहा जाता था खल्क एंड सेकंड वाज कॉल्ड एज परचम। इनके बीच में भी लड़ाई होती रहती थी थोड़ी बहुत, ठीक है, इनके बीच में भी लड़ाई होती रहती थी थोड़ी बहुत। सो दिस सार रिवॉल्यूशन हैपेंड। PDPA declared the establishment of Democratic Republic of Afghanistan and first leader of the PDPA was Nur Mohammad Taraki. तो बस इनका सरनेम याद रखो, Taraki was there, he became the president. The PDPA initiated, now this is again a problem if you try to introduce reforms. PDPA ने क्या किया, social, symbolic and land distribution reforms, and that provoked a strong opposition because this was a society which was mainly rural, uneducated and you can say women का subjugation भी होता था इस society में, and they decided to bring social reforms in this. Women को rights देने की बात की इन्होंने. Then they talked about land reforms because यहाँ पे लेकिन again this system of landlords were there. Landlords वगैरह हुआ करते थे काफी ज्यादा. So they decided to take the power from landlords. Land को distribute किया जाए because they were communist in their nature. So they wanted equality and equality तो नहीं हो सकती थी. So this equality की बात की इन्होंने, land reforms की introduction की बात की, and this created a problem. This created a problem and now because as I said, on the one side there is USA, on the another side there is USSR. अब इनका प्रॉक्सी वॉर चलेगा यहाँ पे. दे विल हैव देयर ओन प्रॉक्सी वॉर. प्रॉक्सी वॉर का मतलब होता है खुद इन्वॉल्व नहीं होना लेकिन वॉर में पहुंच जाना. USSR and USA were fighting with each other as a proxy. USSR was supporting PDPA, right, which was communist in nature, and this PDPA was in power. PDPA was in power. तो USA, because PDPA was talking about reforms. PDPA ने किस चीज की बात की यहाँ पे, रिफॉर्म्स की बात की, सोशल रिफॉर्म्स है ना, सोशल रिफॉर्म्स की बात की, लैंड रिफॉर्म्स की बात की, एंड दैट्स व्हाई USA started supporting the people who were majorly talking about the traditional values. यहाँ की जो ट्रेडिशनल वैल्यूज की बात करते थे, यहाँ का जो पुराना सिस्टम है उनकी बात करते थे, उनको सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, एंड इवेंचुअली दे बिकेम तालिब. They became तालिब और तालिबान. इनको एक्चुअली मुजाहिद भी बोला जाता था, मुजाहिद्दीन है ना. तो ये मुजाहिद बन गए एंड लेटर फ्रॉम मुजाहिद ओनली देयर वाज क्रिएशन ऑफ तालिबान. अर्लियर दे वर मुजाहिद्दीन एंड बाद में देयर वाज क्रिएशन ऑफ तालिबान. ठीक है. सो यूएसए सपोर्टेड दिस मुजाहिद कि ठीक है पीडीपीए को ओवरथ्रो किया जाए. दे वांटेड टू ओवरथ्रो दिस पीडीपीए. सो दिस सिचुएशन इज गोइंग ऑन नाउ. This caused unrest. Now this you can say reforms. This reforms caused unrest and quickly expanded into a state of civil war. Eventually civil war happened here in 1979, waged by a guerrilla mujahideen against the regime of the force countrywide. So this is mujahideens, right, which was supported by USA. इन्होंने इसको start कर दिया. Now it quickly turned into a proxy war as the Pakistani government provided the rebels to covert training centers. United States supported them through Pakistani ISI. तो अब हुआ क्या, यूएसए की साइड पे कौन हुआ करता था तभी, कटोरा नेशन पाकिस्तान है ना. इनको पैसा मिल रहा था पाकिस्तान से, तो ये भैया यूएसए से, तो ये यूएसए की साइड थे. सो देयर ISI. So this people of ISI, even UAE was involved, even your Saudi Arabia was involved, USA was involved, even Britain, UK was involved in training these people. तो इन्होंने क्या किया, इन मुजाहिद को ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दी. दे स्टार्टेड गिविंग ट्रेनिंग टू दिस मुजाहिद्स को स्टार्टेड ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दिया, एंड दिस मुजाहिद वेयर देन फाइटिंग विथ पीडीपीए. तो इनके ट्रेनिंग के कैंप होते थे इन पाकिस्तान अंडर ISI, इन सऊदी अरेबिया, इन USA, एंड वन ऑफ द सऊदी का जो कैंप था, वन ऑफ द सऊदी कैंप में एक पर्सन ट्रेन हुए थे जिनका नाम था ओसामा, है ना, जो सऊदी अरेबिया से थे, जिन्होंने बाद में अलकायदा का विंग स्टार्ट किया इन अफगानिस्तान. तो इनको भी वहीं पे ट्रेनिंग मिला था बाय यूएसए इटसेल्फ. सो this USA started supporting this via this. Then meanwhile there was increasingly a hostile friction between the competing factions of PDPA. जो मैंने आपको बताया था, a dominant Khalq faction and more moderate Parcham. So this Parcham was mainly liberal faction. ये थोड़े liberal होते थे and urban area के people थे. And this Khalq is majorly rural faction. Because the rural population is more, that's why Khalq is more dominant, whereas Parcham majorly liberal literate people of urban areas, majorly business person वगैरह, they were of Parcham, but both were in PDPA only. और इनके बीच में झगड़ा स्टार्ट हो गया ज्यादा.
In September 1979, PDPA General Secretary Taraki was assassinated in an internal coup. तो इनके बीच में झगड़ा हो गया. And this orchestrated by a fellow Khalq member, then Prime Minister Hafizullah Amin. तो ये थे खल्क के मेंबर. इन्होंने क्या किया, टराकी को मार दिया बिकॉज टराकी वॉज गोइंग फॉर रिफॉर्म्स. टराकी क्या करने की कोशिश कर रहा था, रिफॉर्म्स करने की कोशिश कर रहा था. फिर आमीन आ गए. नाउ आमीन केम इन पावर. द सिचुएशन इन द कंट्री deteriorated under Amin and the thousands of people were went missing. This was mainly during the Amin's period. ऐसा बोला गया कि country situation was deteriorating. The situation of social reforms were going bad and there was rise of mujahid as well. Mujahideen का भी rise हो गया, USA का भी rise हुआ. And because of this, Soviet decided to enter here. Because this PDPA, which was a kind of communist, इनकी वजह से PDPA was supported by Russia. So this Russia supported organization was losing and within this there were conflicts going on. इनके बीच में PDPA के खल्क और परचम में फाइट होने लगे, एक दूसरे के साथ झगड़े होने लगे. That's why eventually Russia decided, or you can say Soviet decided to enter here. And then fall of the empire. So this displeased with the Amin's government, the Soviet army invaded the country in December 1979, heading for Kabul and killing Amin just within 3 days. A Soviet organized regime led by Parcham's Babrak Karmal, ये अगले पर्सन आ गए. He was inclusive of both the faction. Actually ये थे परचम के, that means urban area से थे, but he was having support of both urban and rural, and he was having support of USSR as well, right? So this Babrak Karmal came in power and he filled the vacuum. Soviet troops, but Babrak Karmal came in power because of whom? So Babrak Karmal came in power because of Soviet. So he decided to increase the presence of Soviet in more substantial numbers were deployed to stabilize the Afghanistan, and under the Karmal marking the beginning of the Soviet-Afghan war. तो यहाँ पे start हो गया Soviet-Afghan war. On the one side that is USSR or Soviet, and on the other side that is Mujahideen, but not exactly Mujahideen. It is whom? It is USA. And USA started one operation called Operation Cyclone. Operation Cyclone start कर दिया USA ने to support this Mujahid, इन सपोर्ट करने के लिए मुजाहिद को. दिस ऑपरेशन साइक्लोन वाज लॉन्च एंड देयर आर मेनी फोटोज ऑफ मुजाहिद एंड यूएस प्रेसिडेंट हैविंग अ मीटिंग. इन दोनों की मीटिंग के बहुत से फोटोज है कि ये मुजाहिद अपने पूरे यूनिफॉर्म में बैठे हुए और यूएसए के प्रेसिडेंट वगैरह आके बैठे और इनसे बात कर रहे हैं क्या सिस्टम किया जाए क्या नहीं किया जाए. एंड ही लॉन्च दिस ऑपरेशन कॉल्ड ऑपरेशन साइक्लोन इन विच ही स्टार्टेड फंडिंग देम मुजाहिद्स, एंड इवेंचुअली आज तक वो फंडिंग ही करते रह गए इस इश्यू को संभालते संभालते, है ना. Fall of empire, as I said. The war displaced about 6 million people who subsequently fled Afghanistan, mainly in Pakistan and Iran. The Soviet withdrawal and the civil war ensued until the communist regime of PDPA under Mohammad Najibullah collapsed in 1992. तो करमाल के बाद नजीबुल्लाह आ गए. करमाल के बाद कौन है? नजीबुल्लाह है. बट नजीबुल्लाह भी ज्यादा टाइम पावर में नहीं रह पाए. इवेंचुअली 1992 disintegration of USSR happened, and then there was coming up of power in the hands of Taliban. And अब तक USA was supporting Taliban and USA was saying it's a good Taliban. It's a गुड तालिबान जो वहां पे चीजें थोड़ी ठीक करना चाहते हैं, जो चीजें वहां पे थोड़ी ठीक करना चाहते हैं. सोवियत बैक्ड रेजिम ऑफ मोहम्मद नजीबुल्लाह इन 1992. मेनी अफगान पॉलिटिकल पार्टीज बट नॉट ऑल इन अप्रैल एग्रीड टू हैव अ पीस एंड पावर शेयरिंग एग्रीमेंट कॉल्ड पेशावर अकॉर्ड. पेशावर अकॉर्ड साइन किया गया लेकिन ज्यादा फ्रूटफुल नहीं था. विच क्रिएटेड अ इस्लामिक स्टेट ऑफ अफगानिस्तान एंड अपॉइंटेड एन इंटरिम गवर्नमेंट फॉर द ट्रांजिशनल पीरियड, बट दैट इस्लामिक स्टेट एंड इट्स government were paralyzed right from the start due to rivalry groups contesting for the total power of Kabul and Afghanistan. तो इन्होंने थोड़ा एग्रीमेंट भी किया, पावर शेयरिंग एग्रीमेंट कैसे होना चाहिए क्या होना चाहिए, बट इट वाज नॉट दैट fruitful because they were fighting with each other. And this is मोहम्मद नजीबुल्लाह. ये है मोहम्मद नजीबुल्लाह. नाउ यहां से ऑनवर्ड्स विल स्टार्ट द स्टोरी ऑफ तालिबान. तालिबान ने कैसे कैसे रूल किया, तालिबान ने इस कंट्री को कैसे बर्बाद किया और फिर यूएसए को अपने प्रॉब्लम को कैसे रियलाइज किया. अच्छा, इन बिटवीन देयर इज वन स्टोरी दैट यूएसए स्टार्टेड गिविंग वन मिसाइल टू
तालिबान और यू कैन से मुजाहिदीन, उनको बोला जाता था स्टिंगर मिसाइल, जो मैंने आपको नाम बताया था पहले, फोटो दिखाया था। स्टिंगर मिसाइल वाज यूज। स्टिंगर मिसाइल क्या होता था? हैंड लॉन्च थी, हाथ से लॉन्च करके आप किसी भी हेलीकॉप्टर वगैरह को उड़ा सकते थे। तो ये क्या करते थे तालिबान के लोग या फिर मुजाहिद के लोग, दे वेर यूज टू लॉन्च दिस फ्रॉम देयर व्हीकल्स एंड हिट द यूएसएसआर, सोवियत का हेलीकॉप्टर उड़ाते थे और उसके पास जाके फिर फोटो खींचते थे। ठीक है, सो दिस वाज द रोल ऑफ स्टिंगर मिसाइल। स्टिंगर मिसाइल ने यूएसएसआर को काफी परेशान किया एंड इवेंचुअली वन ऑफ द रीजन फॉर रिमूवल, है ना, उनका रिमूवल के लिए। ओके, so its US's basic policies support the rebellion against the currently government. Yes, Najibullah was also having very good relation with India. And during this period only there was rise of many things like आप जो बता रहे हो, हक्कानी नेटवर्क हो गया, अल कायदा हो गया, तालिबान हो गया, इन सब का राइज इसी पीरियड में हुआ था, इसी पीरियड में हुआ था। ठीक है, ओके। थैंक यू अर्ज। वी कैन से दैट यूएसए इटसेल्फ इज द ओनली, यस यस, होता ही है जनरली। ठीक है, होता ही है। चलो, देखो जो है वो है ना। पहले आपको यूएसए पैसा देता था तो आप उधर कटोरा लेके बैठे थे, अब आपको चाइना पैसा देता तो आप उधर कटोरा लेके बैठे हो। तो है ही, आपका नाम ही वो है, क्या कर सकते हैं उसमें, है ना। मैंने नहीं दिया है, वो आपने खुद ने लिया है। खैबर पास, वेरी गुड, खैबर पास, है ना। मैं आंसर पूछना भूल गया था। खैबर पास वाज देयर, करेक्ट। व्हाट इज द नेम ऑफ द पास? खैबर पास इट इज, अनुष्का। ठीक है, ओके, चलो। सो नाउ फ्रॉम 1992 ऑनवर्ड्स दिस तालिबान इज देयर। अब तालिबान ने क्या किया पावर में आने के बाद? तालिबान वॉज मेजरली देयर इन रूरल एरियाज एंड दे केम इन पावर एज वेल। लिटरेसी उनका कुछ खास था नहीं एंड उनके पास पैसा भी कुछ ज्यादा था नहीं एंड ओपीएम वॉज वन ऑफ द मेजर एक्सपोर्ट्स फॉर देम, जहां से वो पैसा कमाते थे बहुत ज्यादा, है ना। सो इन्होंने अपना ग्रोथ स्टार्ट किया, पैसा कमाना स्टार्ट किया एंड इवेंचुअली दिस इकोनॉमी थोड़ा ठीक हुआ, बट द सिचुएशन ऑफ वुमेन डिटीरिएटेड मेनली ड्यूरिंग दिस पीरियड ओनली। तालिबान के पीरियड में, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम 1992 टू 96 एंड 96 के बाद में भी तालिबान वाज देयर टिल 2002-3 के बाद तक था वो कहानी, जब तक यूएसए डिड नॉट एंटर इन दिस वॉर। तो 1992 से लेके कहानी ऐसी थी कि तालिबान स्टार्टेड दिस, उनका जो ओल्ड शरिया लॉ है उसको उन्होंने फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। द सिचुएशन ऑफ वुमेन मेजरली डिटोरिएटेड, दे वर नॉट अलाउड टू गो आउटसाइड विदाउट देयर मेल काउंटर पार्ट। घर का कोई फीमेल मेल मेंबर ना हो तो वो बाहर नहीं जा सकती थी। दे कैन नॉट गो इन विंडो, दे हैव टू वियर बुरखा ऑल द टाइम्स एंड अगर किसी को ऐसे देख लिया गया तो उनका पब्लिकली बिहेडिंग कर दिया जाता था, मार दिया जाता था, पत्थर फेंक के मारा जाता था। एंड देयर वर मेनी वीडियोस ऑफ दिस टाइम, जब ये सब हो रहा था एट दैट टाइम। ठीक है, एंड eventually the situation of Afghanistan deteriorated a lot during this Taliban's period, but USA was not feeling this as much. Even India felt it when we talked about this hijack of airlines, इंडिया की एयरलाइंस थी, that was hijacked from है ना, काठमांडू टू दिल्ली जाने वाली थी, then it was अमृतसर से दुबई, और दुबई से फिर it was eventually landed in कांदाहार। so कांदाहार में of course it was with the support of अफगानिस्तान ओनली, तालिबान के सपोर्ट से उसको वहां लैंड किया गया था। दे आर नॉट डायरेक्टली अगेंस्ट इंडिया, लेकिन दे वर इन सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान, बिकॉज पाकिस्तान कंसिस्टेंटली लाइक ड्यूरिंग द टाइम ऑफ यूएसए, जब यूएसए सपोर्ट कर रहा था तब से पाकिस्तान वाया आईएसआई दे आर सपोर्टिंग तालिबान एंड इवन इन टूडेज डेट दे आर सपोर्टिंग तालिबान। तो इसलिए वो तालिबान को तब से आज तक सपोर्ट करते आए, चाहे उनको पैसा यूएसए ने दिया हो चाहे चाइना ने दिया हो, एंड दैट्स व्हाई देयर इज अ प्रॉब्लम एंड इंडिया को भी फील हुआ टू था, लाइक व्हेन वी हैड दिस इशू ऑफ हाईजैक एंड वी हैव टू रिलीज, है ना, टेररिस्ट को हमें छोड़ना भी पड़ा। एंड इवेंचुअली तब भी यूएसए डिड नॉट रियलाइज, बट यूएसए रियलाइज दिस व्हेन, जब 9/11 हो गया, जब 9/11 हुआ, जब खुद को,
है ना, पता चला वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिर गए तुम्हारे, उसमें सीधे इन्होंने प्लेन घुसा दिए, तो उसके बाद आपको रियलाइज हुआ कि आपने क्या क्रिएट कर दिया है, एंड देन दे रियलाइज्ड कि देयर इज अ प्रॉब्लम, एंड देन दे डिसाइडेड टू, है ना, घुसते हैं वहां पे और उसको जाके हटाते ओसामा बिन लादेन, बिकॉज ओसामा वाज प्रोडक्ट ऑफ अल कायदा, है ना, अल कायदा था वो, बट वाज प्रोडक्ट ऑफ अमेरिका इटसेल्फ, एंड उसने ये अटैक कर दिया, एंड देन ही वेंट टू अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में जाके अल कायदा कंट्रोल किया, एंड तालिबान सेड ही इज आवर गेस्ट। जब प्रॉब्लम कब हुई, व्हेन अमेरिका वॉज बिलीविंग कि अगर ये ओसामा बिन लादेन तालिबान के पास जाता है तो तालिबान को तो हमने बड़ा किया है, तालिबान विल गिव अस ओसामा बिन लादेन, बट व्हाट तालिबान सेड ओसामा इज द गेस्ट, हमारे गेस्ट है और हम गेस्ट को ऐसे नहीं दे सकते, फिर यूएसए हैव टू एंटर इन अफगानिस्तान। अब देखते हैं पढ़ते हैं क्या दे रखा है। So Taliban drove out the government of Rabbani from Kabul in the year 1996, where they established an estimate that gained international recognition from the only 3 countries, तो 3 ही कंट्री का रिकॉग्निशन था तालिबान को। Taliban were condemned internationally for the harsh enforcement of interpretation of Islamic Sharia law, which resulted in the brutal treatment to many Afghans, especially women, and even male को भी बोला गया था कि उनको भी दाढ़ी ग्रो करना, बियर्ड ग्रो करना कंपलसरी है ना, बियर्ड ग्रो करना कंपलसरी है, और बाकी भी कपड़े वैसे ही पहनने होंगे जो बोला गया है। एंड देयर वाज पुलिस कॉल्ड कम्युनिटी पुलिस, वहां पे एक पुलिस बनाई गई थी जिनका नाम था कम्युनिटी पुलिस। उनका ये काम होता था, और रिलीजियस पुलिस कह सकते हो, इनका ये काम होता था कि कौन रिलीजियस चीजों को फॉलो नहीं कर रहा है उसके बारे में वहां की सरकार को इन्फॉर्म करो और फिर उनको मारा जाए। ड्यूरिंग देयर रूल तालिबान एंड देयर अलाइज कमिटेड मैसेकर अगेंस्ट अफगान सिविलियंस, डिनाइड यूनाइटेड नेशन का फूड सप्लाई, स्टार्विंग सिविलियंस, कंडक्टेड पॉलिसी ऑफ scorched earth, burning vast areas, fertile land and destroying tens of thousands of homes। तो ये सब किया तालिबान ने। In October 2001, United States invaded Afghanistan। कब इनको रियलाइज हुआ to remove Taliban from the power after they refused to hand over Osama bin Laden, the prime suspect of 9/11 attacks, who was a guest of the Taliban and was operating his Al-Qaeda network from Afghanistan। Then US aided by the UK, Canada and other NATO allies initiated a military action bombing Taliban Al-Qaeda related camps। तो इन्होंने यहाँ पे अब जाना स्टार्ट किया, लेकिन still they were supported by Pakistan। In December 2001, after Taliban government was overthrown, Afghanistan interim administration came under Hamid Karzai। तो इसके बाद थोड़ा सा सिस्टम ठीक हुआ वहां पे जब यूएसए वर एबल टू गो इन देयर। देन इन जनवरी 2004 नाउ वहां पे नई कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात होने लगी। देयर वाज डिसीजन टू मेक अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन बनाई गई बाय लोया जिरगा। लोया जिरगा इज फॉर्मल पहले से ड्यूरिंग दिस दुर्रानी एम्पायर एज वेल। इट इज अ पश्तून यू कैन से लोकल पंचायत टाइप होती है वेयर डिसीजंस आर टेकन। ठीक है। सो लोया जिरगा अडॉप्टेड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉलोइंग इनपुट फ्रॉम अराउंड 5 lakh Afghans, some of whom were participant in the public meeting in villages. The new constitution calls for 1 president and 2 vice presidents, but the office of prime minister was dropped at the last moment। तो prime minister नहीं होंगे, president and 2 vice president। ये system था इस लोया जिरगा का। The official languages will be Pashto and Dari। नाम याद रखना, Pashto and Dari। And the new constitution calls for इक्वालिटी फॉर वुमेन। तो ऑफकोर्स अब गवर्नमेंट की है तो अगेन देयर विल बी अ प्रॉब्लम। तालिबान को रूरल पॉपुलेशन सपोर्ट करना स्टार्ट कर देगा। व्हाट इज लोया जिरगा? लोया जिरगा इज अ स्पेशल टाइप ऑफ अ जिरगा और अ लीगल असेंबली ऑफ पश्तून लोगों की। द ट्रेडिशनल कोड लॉज of the Pashtun people. It mainly organized for choosing a new head of the state। इसके लिए ऑर्गेनाइज करते हैं। In the case of sudden death of the head of state, adopting a new constitution or to settle national regional issue such as war। तो इन सब के लिए लोया जिरगा काम करती थी जिन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाई। इट प्रीडेट्स द मॉडर्न डे रिटर्न और फिक्स लॉ। तो ये सब नहीं होगा वहां पे वही लॉ होंगे जो पश्तून लोगों को पसंद आते हैं, वो लॉ लोया जिरगा बनाती है। हिस्टोरिकली नोन एज अफगान्स, पश्तून लोगों का होता है ये। लोया जिरगास हैव बीन रिपोर्टेडली देयर सिंस 18th century when there was दुर्रानियन होताकी डायनेस्टी वाज देयर। तब से लोया जिरगा वहां पे काम करती है। ठीक है। द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी, अब यूएनएससी भी आ गई बिकॉज यूएसए आ गया। अब यूएस भी पिट रहा है वहां पे, हर कोई पिट रहा है, तो दैट्स व्हाई यूएनएससी भी आ गई। यूएनएससी अडॉप्टेड अ रिजोल्यूशन नंबर 1267 क्रिएटिंग अ सो कॉल्ड अल कायदा
एंड तालिबान सैंक्शंस कमेटी, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। रिजोल्यूशन नंबर क्या है इसका? 1267 है। क्रिएटिंग अल कायदा एंड तालिबान सैंक्शंस कमेटी। नाटो स्टेड इन अफगानिस्तान फॉर 13 years फ्रॉम 2001 to 2014। उसके बाद नाटो चला गया, बट स्टिल यूएसए वाज देयर। मोस्ट ऑफ द फोर्सेस लेफ्ट इन December 2014। अराउंड 10,000 फोर्सेस ऑफ नाटो वेर मेड अवेलेबल इन अफगानिस्तान प्राइमरली टू असिस्ट द अफगानिस्तान फोर्सेस, और अफगानिस्तान गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए। द मेन एम ऑफ नाटो इंटरवेंशन वाज अंडर ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। तो पहले इन्होंने ऑपरेशन साइक्लोन लॉन्च किया वहां पे तालिबान बनाने के लिए, फिर ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम स्टार्ट किया वहां से तालिबान और अल कायदा को हटाने के लिए। ठीक है, वाज टू डिसमेंटल द अल कायदा, नाम याद रखना, एंड्यूरिंग फ्रीडम। तो ऐसा साइक्लोन लेके आ गया आपकी, उससे फ्रीडम ही नहीं मिल पा रहा है, तो इसलिए एंड्यूरिंग फ्रीडम करना पड़ा। एंड टू डिनाई इट्स अ सेफ बेस फॉर ऑपरेशन इन अफगानिस्तान, रिमूविंग द तालिबान फ्रॉम द पावर। द पर्पस ऑफ नाटो इंटरवेंशन इज टू डिफीट अल कायदा, रिमूव तालिबान फ्रॉम द पावर एंड क्रिएट अ डेमोक्रेसी इन अफगानिस्तान। दिस देर वॉज क्रिएशन ऑफ इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंस फोर्स, ISAF भी बनाया गया। देर वॉज क्रिएशन ऑफ ISAF was established by United Nations Security Council, UNSC ने बनाया इसको, to assist Hamid Karzai administration to provide basic security. In 2014, Ashraf Ghani became the president. After 2014 presidential election, where for the first time, तो पहली बार हिस्ट्री में आज तक 2014 में ऐसा हुआ कि डेमोक्रेटिकली पावर वाज शिफ्टेड फ्रॉम करजाई टू अशरफ गनी, वेयर द अफगानिस्तान हिस्ट्री, जहां पे डेमोक्रेटिकली पावर ट्रांसफर की गई, नहीं तो मिलिट्री कूप हो जाएगा, मोनार्की हट जाएगी, डेमोक्रेसी हट जाएगी, तालिबान आ जाएगा, यही सब चलता है। In 2014, NATO formally ended ISAF combat operations and Afghanistan and transferred full security and responsibility to the Afghan government. Operation Resolute Support. The NATO-led Operation Resolute Support formed the same day to as the successor of ISAF. तो बस नाम के लिए इन्होंने खुद को हटाया, लेकिन वहां पे रखा गया था। Even USA was still there. 2014 के बाद भी USA वहां पे था। Now, what is this peace process? इनकी peace process क्या है, क्या कहती है, वो देखेंगे। ठीक है, राइट। तो इन्होंने बाद में क्या बोल दिया, दे कन्वर्टेड यूएस, जो कोई किसी ने लिखा है ना बैड तालिबान, बाद में इन्होंने यूएसए को चेंज कर दिया अपना स्टेटमेंट। इन्होंने कहा कि देयर आर 2 तालिबान, वन इज बैड तालिबान, वन इज गुड तालिबान। ठीक है, ओके, राइट। बमियान बुद्धा, अफगानिस्तान सेइंग दैट इट वाज फ्रीडम, राइट। ये भी एक इंपॉर्टेंट इवेंट था, बमियान बुद्धा वाला। ठीक है, चलो देन गोल्स फॉर अचीविंग पीस इन अफगानिस्तान एंड स्टेबिलिटी क्या होनी चाहिए गोल्स? प्रिवेंट टेररिस्ट ग्रुप्स, तालिबान, तो हमें क्या करना होगा, प्रिवेंट करना होगा टेररिस्ट ग्रुप फ्रॉम यूजिंग अफगानिस्तान एज द बेस। प्रिवेंट तालिबान कटिंग देयर टाइज विद टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लाइक अल कायदा। इस्टेब्लिश अ टाइमलाइन फॉर विड्रॉइंग, कि बाकी सारे कंट्रीज की फोर्सेस जो है वो कब बाहर निकलेगी वहां पे। देन हैव अ पॉलिटिकल सेटलमेंट इन द इंट्रा अफगान निगोसिएशन, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इंट्रा अफगान का मतलब क्या है, 2 टाइप के निगोसिएशन जरूरी है। वन इज इंटर अफगान, इंटर अफगान मीन्स बिटवीन अफगानिस्तान एंड यूएसए, यू कैन से अफगानिस्तान एक साइड में, तालिबान एक साइड में और यूएसए एक साइड में। एंड सेकेंडली इंट्रा अफगान, व्हेन ऑन द वन साइड देयर इज अफगानिस्तान गवर्नमेंट, अफगान का मतलब है अफगान गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, एंड ऑन द सेकंड साइड वी विल हैव ऑल द फोर्सेस लाइक तालिबान हो गया, अल कायदा हो गया, या जो भी है, इनके बीच में विद इन अफगानिस्तान वी नीड टू हैव अ सेटलमेंट। एंड देन इंटर अफगानिस्तान, दैट मीन्स बाहर वालों के साथ भी इनका सेटलमेंट होना चाहिए, क्योंकि बाहर वाले निकलेंगे नहीं तो डेमोक्रेसी आएगी नहीं। ठीक है, अब ऐसा आपने बोल सकते हैं ना कि इंडिया ब्रिटिशर्स के अंडर और फिर यहाँ पे डेमोक्रेसी, हमारे लोग को बुरा लगेगा कि ब्रिटिशर्स क्यों हमारे यहाँ रुके, उनको जाना चाहिए, तो इनको भी बाहर निकलना पड़ेगा। द अफगान गवर्नमेंट एग्रीड टू जॉइन इंट्रा अफगान निगोसिएशंस provided that Taliban meets the condition outlined in the US Taliban agreement and committed to the discussion about the prisoner release। तो ये क्या कह रहे हैं अब, what they are trying to say here, यहाँ पे इनका कहना का मतलब ये है कि once this inter Afghan talks are there, इसकी जो एग्रीमेंट है, दैट तालिबान एग्रीज व्हाट यूएसए इज ट्राइंग टू से इन दिस, वंस दिस इज डन वी विल हैव टॉक विद द तालिबान एज वेल, हम तालिबान के साथ भी बात करेंगे, ऐसा बोला गया है बाय द अफगानिस्तान गवर्नमेंट।
with the United States and the Afghan government also agreed to begin the reviewing of the sanction against Taliban after intra-Afghan negotiation. The United States, for the part, confirmed its commitment and seeking United Nations Security Council approval. Reconstruction of efforts होना चाहिए. Interference in Afghanistan's domestic affairs should be removed or should be taken out by outsiders. ठीक है. And there should be establishment of a permanent comprehensive ceasefire. Now these are the situations which are required here. Now here onwards कि अभी ये क्या हो रहा है 2020 के बाद 2021 के बाद, what exactly is happening, क्या क्या इनकी प्रोसेस है, पीस प्रोसेस, एंड हाउ दिस इंटरवेंशन इज हैपनिंग इन द पीस प्रोसेस. इस पीस प्रोसेस में अभी क्या हो रहा है एंड इंडिया का रोल क्या है इन दिस अफगानिस्तान इशू, इंडिया क्या पार्ट प्ले करता है, दैट विल डू इन मे बी सैटरडे सेशन. सैटरडे वी आर हैविंग सेशन, है ना. तो अभी जो आर्टिकल में भी आया उसके बारे में पढ़ना है, तो वो सैटरडे को करेंगे. लेट्स डू दिस लास्ट पार्ट, दैट इज न्यूज इन शॉर्ट. तो न्यू कैबिनेट मिनिस्टर्स आ रखे हैं, तो इतनी चीजों को रिवाइज भी कर लेना आप, दैट विल बी मोर हेल्पफुल, है ना, ताकि कहानी आपके दिमाग में छपी हुई रहे. सो दिस इज न्यू कैबिनेट मिनिस्टर. ज्योतिरादित्य सिंधिया सिविल एविएशन मिनिस्टर बने हैं. देन अश्विनी विष्णु रेलवे एंड आईटी मिनिस्टर. दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर मोर फॉर 2021 लोग, है ना, 2021 वालों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मनसुख मांडविया हेल्थ मिनिस्टर. भूपेंद्र यादव मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. अनुराग सिंह ठाकुर मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, मिनिस्टर फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स. तो ये हटा दिए गए वहां से फाइनेंस से. किरण रिजिजू मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस एंड नारायण राणे मिनिस्टर फॉर एमएसएमई सेक्टर के लिए. याद कर लेना, रट लेना इस चीज को, कैसे भी आपको जैसे रटना है. चेंजेस एटलीस्ट रट लो जो ये चेंजेस किए गए हैं मेनली फॉर 2021. 22 वाले ना रटे तो चलेगा. जज रेस्क्यू फ्रॉम हियरिंग ममताज इलेक्शन पिटिशन, है ना, तो बहुत सारे जजों ने किया ये. द कलकत्ता हाईकोर्ट जस्टिस कौशिक चंदा इम्पोज द कॉस्ट ऑफ ₹5 लाख ऑन द चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी while rescuing himself from the hearing and election petition filed by her. The cost has been imposed for vilification adopted to seek the recusal. The chief minister had filed an election petition in June 2021 in the High Court alleging irregularities in counting process in the Nandigram Assembly poll. Then new platform Maps Pegasus spread. New platform Maps Pegasus, an online database of spyware. Just remember here, this is a spyware. Pegasus एक kind of you can say एक अटैक होता है, आपके मोबाइल के ऊपर अटैक होता है. एंड बाय दिस आपके मोबाइल का पूरा डेटा, क्या कर रहे हो, कॉल मैसेज सब कुछ ले लिया जाता है. पेगासस नाम का स्पाईवेयर है विच इज मेड बाय इजराइल की कंपनी है जिसने ये बनाया था. एंड इसके बारे में ये काफी न्यूज में था बिकॉज इसको इंडिया के बहुत से जर्नलिस्ट या फिर अपोजिशन के लीडर थे, उनके फोन में इसको पाया गया था. इसमें सिंपल, देयर इज वन मिस कॉल दैट विल कम ऑन योर व्हाट्सएप. इवन इफ यू डू नॉट रिसीव द कॉल दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. जस्ट आपके फोन पे एक व्हाट्सएप पे कॉल आएगा, आपके फोन पे व्हाट्सएप पे कॉल आ गया, मतलब आपके फोन में पेगासस घुस चुका और आपकी पूरी इंफॉर्मेशन वो ले सकता है. एंड दिस वॉज फाउंड इन जर्नलिस्ट एंड अपोजिशन लीडर, और तब बोला गया था बाय दिस कंपनी हु सेल्स पेगासस फ्रॉम इजराइल. उन्होंने कहा था वी सेल पेगासस ओनली टू द गवर्नमेंट्स, हम सिर्फ सरकार को बेचते हैं. और उसके बाद आगे कुछ कहानी बड़ी नहीं थी. जस्ट रिमेंबर द नेम स्पाईवेयर पेगासस, ठीक है. यूज इन रिसेंटली फॉरेंसिक आर्किटेक्चर, एमनेस्टी इंटरनेशनल छोड़ दो, दिस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट फॉर अस. इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये कि इंडिया में भी पाया गया था ये. एक्टिविस्ट लाइक बेला भाटिया, आनंद तारटुमडे, है ना, इनके अकाउंट, इनके मोबाइल में इसको पाया गया था. एंड लास्ट न्यूज, हाइती प्रेसिडेंट, इनको असैसिनेट किया गया. इनका नाम याद रखना, जोवेनेल मॉइस. द पर्सन हु आर अगेन गिविंग 2021, उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनका असैसिनेशन. घर में ही घुस के मारा गया था. गनमैन, हाइतियन प्रेसिडेंट गनमैन असैसिनेटेड दिस जोवेनेल मॉइस. तो इनका नाम याद रख लो, MOICE, मॉइस, माउस जैसे भी याद रखना है. हाइती में क्या है, माउस है. इसके अलावा यूट्यूब पे लाइक्स बढ़ाते रहो, दोस्तों को बताते रहो, फेसबुक पे भी, एंड नोटिफिकेशन देख लो. टेलीग्राम पे PDF यू विल गेट, एंड इंस्टा रील्स विल स्टार्ट. लाइक्स करते रहो, बढ़ाते रहो, दोस्तों को बताते रहो, ठीक है. ओके, चलो देन, ठीक है. थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. मिलते हैं अगली क्लास में. पढ़ाई लिखाई करते रहो, अच्छा खाना खाते रहो, स्टे हाइड्रेटेड.
है ना, हाइड्रेटेड रहो और इम्यूनिटी बढ़ाते रहो। वेयर इज हाइती, कंट्री है, गूगल कर लेना कहाँ पे लोकेटेड है हाइती, और उनके प्रेसिडेंट का नाम भी याद रख लेना, जिनको अभी मार दिया गया और नए बनेंगे वो भी याद रखना, ठीक है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ओपियम? पूरी दुनिया में बिकता है, यही इम्पोर्टेंस है, ठीक है। हाथी और चूहा, हाइती इज हाथी, माउस इज चूहा, बस सिंपल है। देखो खुद के जुगाड़ बनाया करो, मेरे से मत बनवाया करो, खराब कर देता हूँ मैं चीज़ों को। थैंक यू, चलो बाय बाय। थैंक यू विजयन, थैंक यू, बाय बाय।